you're watching Now Showing. I'm Atika Farooqi. Tabu is back on the sets of Bhool Bhulaiya 2. Ranveer and Manoj Bajpayee got infected with COVID, hence they are quarantining. It's final. It's going to be Salman Khan's Radhe versus John Abraham's Satyamev Jayate 2 on Eid. Akshay Kumar, Jacqueline, Nusrat kickstart their film Ram Setu in Ayodhya. Composer Sajid Khan adopts his late brother Wajid's name as his surname. Shobita Dulipala to star in Dev Patel's Hollywood directorial debut titled Monkey Man. Dharmendra to take COVID-19 vaccine this week, and Bunty Aur Bubbly 2 trailer to release on March 23rd. There is a lot happening in the world of cinema. You leave aside your regular stuff and join me for some time. Mumbai Saga releasing this week is a high testosterone crime drama but low on emotional connect. Aamir Khan quits social media, reveals what he did not learn from his producer father. And Imran Hashmi to share screen with Amitabh Bachchan reveals how to get into a lean look with the right diet. This week, we have yet another film releasing at the box office, Mumbai Saga, somewhere on the lines of Once Upon a Time in Mumbai and the like. Here we are given the Bombay of 80s, the rise of regional parties, the evolution of local identity politics, small-time gangsters wanting to make it big, inspired by real-life incidents. Amartya Rao, played by John Abraham, is accidentally pushed into the world of gang wars and crime as his younger brother is attacked by the local mafia. This man goes on to become a dreaded gangster, thereby attracting the attention of Mumbai police, where a cop called Vijay Savarkar, played by Imran Hashmi, is all ready to be the cause of this man's decline. Laced with very dramatic dialogues, almost like in every scene. This film reminds us of movies like the Formula Ones. At the same time, like many of Sanjay Gupta's films, this one is high on style, snazzy shot taking, uber cool background music, yet comes with an awareness that what you see on screen is scripted and dramatized. In a scene, Mahesh Manjrekar says, "Keh dena tumhare paas Dubai wala hai, to mere paas Dadar wala hai." And dialogues like Marathi ko tokega to Marathi usko thokega signifies the rise of a certain kind of politics that ruled the land for quite some time. We clearly see the film that tries to touch upon the politics as well as the human drama of a plot. The climax with Pratik Babbar, John Abraham and Gulshan Grover with a plane on a runway and a fuel carrier attacking the police jeep is particularly very well mounted and brilliantly shot. At the same time, we saw the quintessential Sanjay Gupta's inspiration from Godfather, Terminator and the like. Almost the same maneuvers as their lead actors in those films. It's a given in his films and we all know that. For those who like this genre and particularly are a fan of high testosterone drama mounted well through international shot-taking and filmmaking sensibilities and are ready to forsake reason, common sense and the desire for a certain level of emotional connect in the story, this may be a good single theatre, whistle-inspiring experience for you. And a big shout out to Amol Gupte, who plays the antagonist in the film. बंदूक दिखा के डराता है क्या? बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, डराने के लिए नाम ही काफी है, अमर्त्य राव. He has recently been in news when he quit social media, is known to be a man with a sharp eye on detail. There was a phase when his life was marred in controversies and his career was sliding towards a fall. His support to social causes earned him the ire of a few political parties and his working style was often criticized for being isolated. He turned the tide soon after. Lagan took him to Kodak Theatre in the Best Foreign Film nomination at the Oscars. He got married again. He turned his passion for social work into a hit television show, Satyamev Jayate. His association with any project is now a guarantee for its purity of form and emphasis on larger impact. I caught up with Aamir Khan at his house, spoke to him about things he generally doesn't talk about. विमेन को लेके जो नैरेटिव है इंडिया में जी, उसको आपने बहुत खूबसूरती से चेंज किया है. मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपने अपने बेटे आज़ाद के नाम में राव खान रखा है, यानी कि माँ का नाम और बाप का नाम. आप किसी भी एवरेज मर्द से कहिए, चाहे वो दिल्ली का हो, बॉम्बे का हो, वो ये नहीं करेगा जी. दूसरा, दंगल में आपने दिखाया कि एक बेटी भी अपने बाप की तरह अक्खड़ हो सकती है क्योंकि उसमें उसका डीएनए है. जबकि बेटियों को हम ये दिखाते हैं फिल्मों में कि वो एक सुंदर, सुशील, खूबसूरत, प्यारी सी बच्ची हो जो कहना माने. दंगल में तो उसका काफी बड़ा
कंट्रीब्यूशन है। और फिल्मों के अलावा सत्यमेव जयते में मैंने कई इश्यूज उठाए थे जो विमेन्स इश्यूज थे, बिल्कुल, और उसमें काफ़ी डिटेल में हमने काफ़ी चीज़ें रिसर्च भी की थी, बताई भी थी। तो मुझे खुशी होती है कि मैं इस एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर मैं अपनी राय भी रख पाया हूँ। और रखना जरूरी भी है भाई। आपकी बेटी भी जब बड़ी हो रही है तो वो उसी दुनिया में जा रही है जो दुनिया आप क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर मेरी बेटी नहीं भी होती तो मुझे उम्मीद है कि फिर भी मेरी भी सोच यही होती। मेरा ये मानना है कि हम सब एक समान हैं और औरतों और मर्दों में ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए। आपने जो उनके साथ जो ये साल गुजारे हैं, टेल मी 3 थिंग्स दैट मेक्स आमिर खान व्हाट ही इज। What he does is that he's totally focused on whatever he's doing. हमें लगता है वो एक फिल्म एक टाइम पे करते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो एक चीज एक टाइम पे करते हैं। जब वो मैसेज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ तब आप message उनको पढ़ बोल रहे सकते हैं सर मुझे आपसे बात करनी है सर, अर्थक्वेक हो रहा है सर, आग लग गई सर, मैं मर रहा हूँ। He is only messaging. ये बहुत बड़ी बात You know, जब वो शॉट दे रहे हैं तब वो सिर्फ शॉट दे रहे हैं। Okay. You know, तब वो अपने फोन को नहीं देख रहे। A lot of us have attention problems. हमारा अटेंशन स्पैन बहुत जल्दी you know, एक चीज से दूसरी। कंसंट्रेट नहीं कर तो पाते। वो बहुत इंस्पायरिंग है टू वॉच हिम, कि वो मतलब लगातार वो उसी पे काम करते रहेंगे टिल ही इज फाइनली सेड कि हाँ चल अब यू नो। सो दैट्स रियली व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। आप अपनी फिल्मों के लिए रिम्यूनरेशन या फी नहीं लेते, उसके प्रॉफिट शेयरिंग में जनरली हिस्सा रखते हैं। जी। यानी ये कहता है ये आपके बारे में कि पैसा आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करता, क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फैक्शन डज। जी, आप जी। किसी दूसरे गोल लेके हैं क्या? नहीं, दरअसल मुझे आज़ादी चाहिए कि जो मैं जिस किस्म की कहानी चुनूं वो मैं बना सकूं, और मार्केट के लोग जो हैं वो मुझे क्वेश्चन नहीं कर पाए कि भाई आप ये फिल्म कैसे आपने बना ली, ये तो इतनी बड़ी हिट नहीं हुई है, हमारे इतने पैसे लग गए हैं, आपने आपकी फीस तो आपने ले ली है, ले ली और हमारे पैसे जो हैं वो आपने डुबा दिए हैं। तो ये मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। तो लिहाजा ताकि मेरी इंडिपेंडेंस, मेरी आज़ादी रहे कि मैं जो बनाना चाहूँ तो वो मैं अपने रिस्क पे बनाता हूँ। इसीलिए मैं फीस नहीं लेता हूँ, ताकि मैं उस फिल्म की कॉस्ट कम हो जाए। जब फिल्म की कॉस्ट कम होती है उसमें मैं भी रहूँ, तो इस वक्त तो खैर किसी को लॉस नहीं होगा। फिल्म अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कमा ही लेगी, और उसके आगे अगर वो कमाती है तो तब मेरी कमाई शुरू होती है। दूसरा ये कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस पोजीशन में आज मैं हूँ इतने सालों के बाद, तो वो जिम्मेदारी भी मुझ पर होती है कि मैं क्रिएटिव जिम्मेदारी भी लूँ काफ़ी हद तक अपनी ऑडियंस की तरफ, और इकोनॉमिक जिम्मेदारी भी मैं लूँ मार्केट की तरफ। Okay. मैं चाहता हूँ कि हर आदमी मुझसे कमाए, मैं बाद में कमा लूँगा। लेकिन आप चाहे भी जितना ना चाहें, लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया में आपके टैलेंट की और आपके काम की खुशबू फैल रही है, यू वेंट टू चाइना, चाइनीज पीपल आर रियली फॉन्ड ऑफ यू। वेल, इट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। मुझे बड़ी खुशी होती है कि दरअसल मैंने कभी फिल्म, अपनी जितनी मैंने फिल्में बनाई हैं वो मैंने वर्ल्ड ऑडियंस के लिए आज तक मैंने नहीं बनाई है। मैंने हिंदुस्तानी ऑडियंस के लिए बनाई है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो हिंदुस्तानी फिल्में अक्सर देखते हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, और जो अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, जिसको हम NRI बोलते हैं, या एक्सपैट जो हमारे ऑडियंस है। तो हम मेरी वर्ल्ड उतनी ही है जिनके लिए मैं फिल्म बना रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने फिल्म तो अपने लोगों के लिए बनाई है, ये फिल्म और भी लोग पसंद कर रहे हैं। ये इसका सिलसिला लगान से शुरू हुआ था। लगान जब बनी थी तो बहुत लोगों को पसंद आई, अलग अलग देशों में लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और पूरे हमारी टीम को बहुत खुशी हुई कि यू नो वी वर थ्रिल्ड कि यार ये फिल्म, उसकी तो मेकिंग को भी नेशनल अवार्ड मिल गया। जी, 3 इडियट्स बहुत कामयाब हुई दुनिया भर में, पीके बहुत कामयाब हुई दुनिया भर में, दंगल ने तो कमाल ही कर दिया हर जगह, खास तौर से चाइना में। और तो जब आप जाते हैं और जो लोग हिंदी भाषी नहीं है वो आपको देख के कैसे रिएक्ट करते हैं? उनका कोई खास नाम है मेरे लिए, एक्चुअली 2 नाम है। एक तो वो मुझे नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया बोलते हैं। नाइस नेम। हाँ, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो आई फील वेरी हैप्पी दैट दे कॉल मी दैट। एंड दूसरा वो कुछ उनका कुछ चाइनीज में नाम है मेरे लिए, उसका मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आता है कि क्या वो कहते हैं मुझे, लेकिन इट्स अ लॉट ऑफ लव एंड फॉन्डनेस, दे कॉल मी दैट। तो खुशी मुझे ये होती है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम फिल्में बना रहे हैं, जो हिंदुस्तानी फिल्में हैं, जो अपने लोगों के लिए हम बना रहे हैं, कैसे वो रेजोनेट वो दरअसल हर दुनिया भर में लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और लेकिन इसका ये जो होता है ना, बोझ कंधों पर कभी कभी ज्यादा हो जाता है। पीपल सी यू एज एन इंटेलेक्चुअल, पीपल सी यू एज अ सोशलिस्ट, एज बट मैं वो बोझ लेके नहीं घूमता हूँ। मैं आई नो वन थिंग कि मैं जब मैं कोई फिल्म चुन रहा हूँ तो उस वक्त मेरे लिए कोई बोझ नहीं होता। मैं एकदम फ्रीली और खुले दिल से चुनता हूँ, जो कहानी मेरे दिल को छू जाए वो मैं चुनता हूँ। देयर वाज अ टाइम आपके फादर
प्रोड्यूसर थे और बहुत लेजेंडरी प्रोड्यूसर थे, वो भी बहुत रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते थे। जी हाँ, जी हाँ। Huh? There was a time, you have said in your interview, there was a time when you used to get a lot of calls in your house just for their credits. And there was a time जब आपके स्कूल की फीस देना भी कभी-कभी मुहाल हो जाती थी। जी जी। क्या सीख है आपकी? देखिए, अब्बाजान जो थे वो बड़े इन्वॉल्व थे फिल्म मेकिंग में और बड़े पैशनेटली अपनी फिल्में बनाते थे, लेकिन वो पैसों के मामले में बड़े बड़े कमज़ोर थे और बिजनेस सेंस उनका इतना अच्छा नहीं था। शायद इसीलिए वो कई कामयाब फिल्म उन्होंने बनाई, लेकिन पैसों के मामले में वो इतने नहीं कमा पाए या वो एक अलग स्किल सेट है दरअसल। वो अलग, हाँ, एक तो हमने एक ज़िंदगी ऐसी भी देखी है जिसमें काफ़ी तकलीफ थी, और हालांकि अब्बाजान एंड अम्मी हैव गिवन अस अ वंडरफुल लाइफ। उन्होंने बहुत हमको एक प्रोटेक्टेड लाइफ दी है, हर चीज़ जो हमें ज़रूरत थी उन्होंने दी है। लेकिन हमने एक टफ फेज भी देखा, और उससे मुझे ये सीखने को मिला कि अब्बाजान जो थे वो चाहे जितनी भी टफ चीज़ें थी उनके सामने, ही रियली यूज्ड टू बी अपराइट एंड फाइट इट। वो कभी उन्होंने हार नहीं मानी और ना उन्होंने गलत तरीका इख्तियार किया। तो इससे मुझे ये सीखने को मिला अब्बाजान से कि ही वाज समवन हु वाज वेरी अपफ्रंट and very straightforward and very strong as a person. Okay. Yeah, so that I learned from him. मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ मैं हूँ उसका एक बहुत बड़ा हाथ है अम्मी अब्बाजान का, खास तौर से अम्मी का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वक्त वो हमारे साथ गुजारती थी। अब्बाजान काफ़ी मसरूफ़ रहते थे, बिजी रहते थे, लेकिन अम्मी के साथ बहुत वक्त गुजारा मैंने, तो उनका बहुत गहरा असर है। अभी कैसा रहता है? अब मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं कम वक्त गुजार रहा हूँ अम्मी के साथ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमें अपने आप से रहती है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारूँ, और उम्मीद है मैं वो करूँगा। It's time for a short break on the show. On the other side, we have Imran Hashmi talking about the right diet for an actor, and Pawan Malhotra, an actor you can't take your eyes off on screen. Welcome back to Now Showing. I am Atika Farooqi. Imran Hashmi is in the limelight. His film Mumbai Saga releases at the box office. He shares screen with Amitabh Bachchan in Rumi Jafri's Chehre that releases soon, and he is being said to be roped in by the makers of the Tiger franchise starring Salman Khan and Katrina Kaif. I have known him since he started his career. As a witness to his image oscillating from serial kisser to a serious actor, he has been through an arc of life. His paternal grandmother, Purnima Das Verma, starred in more than 80 films, her last being Naam with Sanjay Dutt, and refused to cross the border after partition. Let's talk to Imran about life of an actor. मैंने एक लिस्ट तैयार की है, आप जरा गौर फरमाइएगा। छोटे छोटे कई सवाल हैं, देखें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपके एजुकेशन में आपके प्राइमरी सब्जेक्ट्स क्या थे? इंग्लिश, हिंदी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और कॉलेज में? कॉलेज में बीकॉम किया था, और एक्चुअली मुझे बीए करना चाहिए था। मैं अपने परसेंटेज की वजह से मैं बीकॉम में चला गया। ज्यादा आए थे इसलिए बीकॉम में चले गए? नहीं, एक्चुअली जो कॉलेज में गया था वो गवर्नमेंट कोटा में था। तो मैं उसमें चला गया क्योंकि मैं बिल्कुल एकेडमिक नहीं था कॉलेज और स्कूल में। ऑल्दो आई गॉट 72% इन स्कूल, लेकिन फिर भी मैं कॉमर्स में, मुझे लगा कि ठीक है और आसानी रहेगी। बट फिर मैंने डिटूर ले लिया ना एक्टिंग में, तो आई शुड हैव टेकन बीए इन रेट्रोस्पेक्ट। आपकी पहली फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? विक्रम भट्ट। शुड पीपल गो थ्रू काउंसलिंग और थेरेपी आफ्टर दे हैव गॉन थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स? क्योंकि इंडिया में कल्चर नहीं है, रेक्टिफाइबल चीज नहीं है, तो काउंसलिंग हेल्प्स। क्योंकि जब आप किसी एक फेज से गुजर रहे हो, डिप्रेशन का हो या कोई भी चीज, आई हैव सीन इट इन द पास्ट 6-7 years, और मैं काउंसलिंग के लिए तो नहीं गया हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं टू हील आप अपना खुद का एक प्रोसेस ढूंढें। टॉकिंग इज वेरी गुड। अगर आप एक काउंसलर के साथ शेयर करना चाहेंगे तो दैट्स ग्रेट। अगर आप किसी रिलेटिव के साथ शेयर करना चाहेंगे वो अच्छा है। आई थिंक मेडिटेशन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। अच्छा, आप मेडिटेट करते हैं? लॉट, क्योंकि क्या होता है जब कोई भी एक तरह से एक हादसा, उस चीज से गुजरते हो आप, तो ये द मेंटल चैटर जो होता है वो एक रिप्ले पे बचता रहता है आपके दिमाग में। वही एक बहुत ही एक बुरी चीज हो सकती है, द कांस्टेंट नेगेटिव थॉट्स। तो मेडिटेशन इन अ वे काइंड ऑफ मेक्स इट इजियर। यू लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग इन फिल्म्स, डू यू स्टिल यूज दैट स्किल? अनफॉर्चुनेटली नो। फिर ये एक्टिंग के बाद और असिस्टेंट डायरेक्शन में तो मैं बाय डिफॉल्ट, आई मीन बाय एक्सीडेंट पहुंच गया था।
but I wanted to be a graphic designer. जैसे मैं एक film कर रहा हूँ वायुसेना जो Air Force के बारे में है, so I'm playing a Air Force pilot and I'm a big Top Gun fan. Wow. तो उसमें बहुत सारा VFX भी है, so मैं definitely जाना चाहूँगा देखने के लिए कि artists कैसे बनाते हैं और कैसे उस चीज़ को render करते हैं. क्योंकि मैं मुंबई सागा के लिए बहुत बल्की हो गया था, क्योंकि अभी मुझे वेट घटाना है. That was another reason I became vegetarian. क्योंकि मुझे जल्दी आपको ये producers. What is the best workout regime for a lean body? Well, basically workout regime सिर्फ नहीं होता है, आपके डाइट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है. That's almost 70% of your goal achievement अगर आपका डाइट सॉर्ट आउट हुआ. लेकिन अगर आपको लीन होना है तो you can be a sport, आप functional training कर सकते हो, आप HIIT कर सकते हो, high interval training. लेकिन ये एक misconception है कि अगर आप रोज भागोगे, दौड़ोगे, अगर आप जॉगिंग करोगे तो आप जल्दी वेट घटाओगे. Actually, it's counterproductive. आपको हफ्ते में दो बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए. My main thing is gluten. इसलिए मैं ये ब्रेड नहीं खा रहा हूँ. अच्छा. तो मेरा क्या है कि I generally end up becoming chubby when I have breads and stuff. तो मैंने वो completely eradicate कर दिया है. अरे वाह. थोड़ा सा clean हो गया है. Still अभी दिल्ली दूर है. आपने एक किताब लिखी थी बिलाल सिद्दीकी के साथ, द किस ऑफ लाइफ, अपने बेटे अयान की स्टोरी पर. उसको रिलीज करने का या उसको दूसरों के लिए पढ़ने की एक चीज मिले, उसकी मंशा क्या थी, उसका इंटेंशन क्या था आपका? जब हमने ये प्रॉब्लम फेस की तो बीइंग फ्रॉम वी एजुकेटेड बोथ ऑफ अस, परवीन एंड मी, डायग्नोसिस से लेकर कीमोथेरेपी, रिकवरी, वो हमें लगा कि हमें शेयर करना चाहिए. और एक दूसरा भी बहुत बड़ा हाथ है न्यूट्रिशन का, जो लोग जानते नहीं है रिकवरी फेज में. अच्छा. और कैंसर को फाइट करने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे खाने में, हमारे खुद की डाइट में, इंडियन डाइट में, दे आर नेचुरल कैंसर फाइटर्स जो लोग जानते नहीं हैं. अच्छा. जैसे हल्दी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल कैंसर फाइटर है. और 80% ऑफ कैंसर्स इन्वायरमेंटल रीजंस की वजह से होती हैं. अगर खुदा ना खास्ता किसी के बच्चे को ऐसा हुआ है तो रेस्ट अश्योर्ड आजकल कैंसर सक्सेस रेट्स बच्चों में 70 to 90%, 95% सक्सेस रेट. सो दैट्स वेरी हार्टनिंग, क्योंकि बच्चों का जनरली उनकी बॉडीज में भी एक हीलिंग प्रोसेस जल्दी होती है एंड दे आर आल्सो मेंटली मच स्ट्रॉन्गर देन वी आर. मच स्ट्रॉन्गर. द बुक दैट चेंज्ड योर लाइफ, द किस ऑफ लाइफ. व्हिच इज द बेस्ट फ्राइडे मॉर्निंग यू हैव सीन इन योर करियर? कोई एक ऐसी फिल्म जब रिलीज हुई हो तो आपका वो फ्राइडे एकदम मैजिकल था? मुझे याद है मैं मेट्रो सिनेमा गया था मुंबई में और मैं चाहता था कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें. मैं कैंटीन में खड़ा था. अच्छा. और क्योंकि मेकअप मेरा फिल्म में ऐसा था कि मेरी शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, बट आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे पहचाना शुरू किया. अच्छा. मेट्रो सिनेमा में. अच्छा. और फिर वहां से पूरी भीड़ जो थी स्टॉल से वहां निकली. दे केम अक्रॉस द रोड, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम बिकॉज़ दे लव्ड रघु इन द फिल्म. अच्छा. फिल्म नहीं चली बट दे लव्ड द कैरेक्टर. आई रिमेंबर आफ्टर दैट आई वाज डेटिंग माय वाइफ दैट टाइम, शी वाज माय गर्लफ्रेंड. वी वेंट एंड कट अ केक ऑन मरीन ड्राइव. एक्टर्स रोल्स के लिए डायरेक्टर्स की झूठी तारीफ करते हैं? सेट पे आपको काम निकालने के लिए डेफिनेटली कभी-कभी आई गेस डायरेक्टर्स को करना पड़ता है. 6 से 13 साल के बच्चे इंडिया में क्या देखें टीवी पर? मेरी फिल्में मत देखना फॉर श्योर. Veteran actor Pawan Malhotra, popular for his role in the famous 1980s Doordarshan show Nukkad, will be next seen in April release Flight. The 62-year-old actor, who has delivered many memorable performances in films like Jab We Met, Delhi 6 and of course Black Friday among others, reveals his childhood connection with Shah Rukh Khan in this interview with my colleague Vishal Chatkara. Pawan ji, you have a new film coming out titled Flight, which is a thriller. Please tell us more about your role and about the movie. See, one of the reasons to say yes to this film, it's a totally different attempt. No, in Hindi cinema, nobody has attempted this. I can't say exactly, but between 75 to 80% film, there's one person alone in a plane. And of course, I can reveal that because promos se pata chal jata hai ki somebody is trying to kill him and how he's managing. And I'm his uncle who also worked for his father, and he's very close to me. And I'm there at the control center, and we are talking to him constantly how he can. So this is the film basically. You know, a lot of our viewers doesn't know, but you have this Delhi connection with Shah Rukh Khan. Shah Rukh and I, we
grew up in same area, New Rajendra Nagar, which I came to know later when he came to Bombay. And we only knew his mother was Indira Gandhi's friend, Mrs. Indira Gandhi's friend. And I remember my school was in New Rajendra Nagar only. Shahrukh was in Columbus. I was in Manavsari school. And during summer holidays, Indira ji came for some meeting, public meeting or something in our school. School was closed, so we were not allowed to go in. But we all went to see Mrs. Gandhi. And after she finished, she went to Shahrukh's house because she was Shahrukh's mother's friend. That's what we were told, And then Shahrukh and I, we are from same college, Hansraj College. Of course, he's junior to me a few years. And I'd finished college when he joined. And then Bombay, I started with Said's company. And he also started with Said's company in Bombay. So there... although he's a huge star, but there are lots of connections or similarities. You played Tiger Memon in Black Friday. Gee. That released in 2004. That time, there was no internet like we have today. How did you manage to get info about Tiger Memon? How did you prepare for that role? When I read the script, I told Anurag that I'm doing it. Then he told me, read the book. I said, no, I'll stick to your script. He said, no, my script is very close to the book and you will get some backstories. So, of course, it helped me. I got some backstories. कि किस तरह का character होगा. I just happened to meet one person who said, sir, मैं 5-7 मिनट के लिए किसी के साथ था, एक बार मिला था, मुझे ऐसा लगा वो आगे झुक के बात करता था. That I could only use in एक टूथपिक का सीन है मेरा बादशाह के साथ, जिसको टूथपिक सीन बहुत सारे लोग बोलते हैं. उसमें towards the end of that scene, I went towards him, So when people said, after the film, I met some 5-6 different people at different times, then they said, ऐसा ही, exactly ऐसा ही इंसान है. So I said, but this is, God has been so kind to me. मैंने तो अलग अलग जगह से लेकर आटा लेकर रोटी बनाई, वो रोटी सही बन गई. As we come close to the end of the show, I would love to recommend to you a very nice watch for the weekend. A documentary available on popular OTT platforms called I Am Ali is one of the many documentaries and feature films made on Muhammad Ali, the greatest boxer of all time. Born Cassius Clay to a billboard painter father and a domestic help mother, this man was something. I found this documentary to be more thrilling than the feature made on him with Will Smith. He says, I wrestled an alligator, I tussled with a whale, I handcuffed lightning, thrown thunder in jail, I'm bad man. Last week I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick, I'm so mean, I make medicine sick. This will enthuse you with just the right energy and enthusiasm that you need in COVID times. Float like a butterfly, sting like a bee. The hands can hit what the eyes can see. You will totally enjoy this one. I see you next week in the next episode. Till then, goodbye, take care and mask up, of course.